Jai Shri Ram, Sat Sri Akal, Adab. Uh, Students, you are most welcome once again on this YouTube channel. This is Dr. Amit Parihar, Assistant Professor from the Department of English, Shamlal College, University of Delhi. Once again, I am back with a video specifically designed for BCom students who opt this subject, that is English language through literature. Second. Though it is similar on the pattern of English language through literature one, uh, you may come here on this video to learn the tricks so that you can easily understand the passage given in the question paper and get the answers. But you know, in language, there are no such tricks like mathematics that I will give you a formula. And even those mathematical formula needs your hard work. It is not that you just claim a formula and you get to the answers quickly. You also need to know how to apply those formulas. Similarly, in language or literature, you need to know about certain techniques, certain tools, certain methodologies in order to comprehend or understand a passage carefully or holistically. To have an in-depth knowledge about the content, idea, tone, you need certain rules, I would say, so that you can understand passage completely. And there are 7 rules which are not, you can say, the only 7 rules, but this is what I find important to discuss with you guys. This can possibly help you during examination. And even if you consider these rules, it can also help you uh, in qualifying your competitive examinations. Because, you know, in most of the competitive exams, you find these comprehensive passages and you're supposed to give the answers from the same passage. The very first thing you should keep in mind that do not keep yourself in a rush in order to just complete the passage through your reading. Read every sentence carefully. हर एक सेंटेंस को ध्यान से पढ़ना जरूरी है ताकि उसकी सही समझ आ सके. जब तक हमें समझ नहीं आएगी तो हम उस बात को सही तरीके से समझ भी नहीं पाएंगे और उस पैसेज में किस बारे में बात की जा रही है हमें पता नहीं चलेगा. या ऐसा भी हो सकता है कि हम आगे बढ़ रहे हैं लेकिन हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है कि हम पढ़ क्या रहे हैं. मैसेज भी पढ़ लिया और समझ भी कुछ नहीं आया, ऐसा अक्सर हो सकता है. एंड दैट हैपेंस ओनली if we do not read a sentence carefully and understand the same, right? Be careful while you read a sentence and be in a position to understand things deeply. Therefore, rush नहीं करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है. वैसा भी नहीं कि बिल्कुल ही स्लो चले, but yes, whatever you read, you try to understand at the very same time. Do not read it just for the sake of reading or try to, you can say, complete the passage through your reading. ये कोई रेस नहीं है, आपको समझना भी है साथ में साथ. Be careful about the development of the thought, idea or an incident. जब भी हम किसी पैसेज को पढ़ते हैं या कोई कविता आपको एग्जाम में दी जा सकती है, किसी प्ले के डायलॉग्स आपको दिए जा सकते हैं, जो एक प्रैक्टिस भी इसी वीडियो में आपको मैं शेयर करूंगा. तो उसमें एक थॉट होता है, एक आइडिया होता है जो धीरे धीरे बिल्ड होता है, एक स्टेजेस में चलता है जहां पर थॉट शिफ्ट होता है. किसी थॉट के बारे में बात होती है, फिर उससे रिलेटेड कुछ आइडियाज दिए जाते हैं, या कोई कहानी है, उस कहानी के अलग अलग पहलुओं के बारे में बात होती है. अगर किसी करेक्टर के बारे में बात हो रही तो उसके डिफरेंट डिफरेंट स्किल्स के बारे में बात होती है, उसके पॉजिटिव्स, उसके नेगेटिव्स. तो आपको उस डेवलपमेंट का ध्यान रखना है, कब कौन सी चीज आगे कहानी में या किसी भी कैरेक्टर के बारे में अलग चीज बताई जा रही है, वो शिफ्ट आपको ध्यान में रखना है. क्योंकि वो जो शिफ्टिंग पॉइंट होगा वो आपके दिमाग में जब बैठेगा तो यू कैन इजिली रिकॉल हाउ थिंग्स वर कैरिड आउट इन द पैसेज, राइट? देन फोकस ऑन की पॉइंट्स इन द पैसेज. कुछ ऐसे फ्रेजेस जो खास आपको लगे इंपॉर्टेंट हो, कहानी से रिलेटेड कुछ ऐसे वर्ड्स हो जो आप फाइनली अपनी जब आप आंसर्स देते हैं तो आप उनको कोट भी कर सकते हैं इन ऑर्डर टू इंटेंसिफाई द वैलिडिटी ऑफ योर आर्ग्यूमेंट, राइट? सॉरी.
आप जो फैक्ट्स वहां पर दिए गए हैं, जो इंफॉर्मेशन दी गई है, कोई भी डेटा वहां पर शेयर किया गया है, तो यू कैन ऑल्सो कीप अ पेंसिल with you in order to highlight these important things given in the passage, right? पेंसिल इसलिए कह रहा हूँ कि पेन से जब आप कुछ मार्क करेंगे तो इन्विजिलेटर आपको कुछ भी बोल सकते हैं, पकड़ सकते हैं, तो आप बारीकी के साथ पेंसिल का यूज कर सकते हैं, जिसको आप फाइनली रब भी कर सकते हैं, राइट? कॉज एंड इफेक्ट, कोई चीज क्यों घट रही है और उसका इम्पैक्ट क्या है उस पैसेज के अंदर, उस कहानी के अंदर या उस कविता के अंदर, इन दो चीजों का जरूर ध्यान रखें. देन ऑफ कोर्स टोन एंड मूड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. लेट्स सपोज मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से, तो आपको पता तो चल रहा होगा कि मैं किस लहजे में बात कर रहा हूँ, मेरा बोलने का तरीका क्या है. तो वो जो समझना है कि अगर कोई चीज नरेट की जा रही है तो नरेटर जो है उसकी टोन क्या है, क्या वो सार्केस्टिक है, आयरोनिकल है, गुस्से में तो नहीं बात कर रहा है, क्या है उसकी टोन, या हैप्पी मूड है उसका. ये सारी चीजें हमको, सैडिस्टिक टोन में तो नहीं बात कर रहा, तो ये सारी चीजें हमको ध्यान में रखनी होती है, राइट? क्योंकि उसी से हम प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट समझते हैं. एंड देन ऑफ कोर्स लैंग्वेज बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. Sometimes authors use musical language, right? Like the language used in poetry or drama, right? Language, you can say, you have to differentiate whether it's lucid in nature, it's plain language, it's rich, and you can say diction, right? तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है. फॉर्मल लैंग्वेज है, इनफॉर्मल लैंग्वेज है, कॉमन मैन की लैंग्वेज यूज हो रही है, या कोई यू कैन से लिटरेट लिटरेरीनेस जिसमें बहुत ज्यादा है, ऐसा कुछ है, ये सारी चीजें ध्यान में आपको रखनी है. इस सब के ऊपर एक चीज आती है जो इन सारे रूल्स का समाधान एक ही में आता है, मैं आपको बता दूं. दिस इज एन एक्सरसाइज विच can possibly excel on your behalf if you have the habit of reading books. Read books as much as you can. Of course, मैं ये तो नहीं कह रहा क्योंकि अब आपके एग्जाम शुरू होने वाले हैं और आप इस मोमेंट पर तो नहीं कर सकते. But this is, I'm telling you, for your future. Even if you will go for the competitive exam where you're supposed to meet with the English section in the form of, you can say, the comprehensive passages, right? This comprehension section. So इसलिए आपको किताबें पढ़ना बहुत जरूरी है, बिकॉज किताबें पढ़ने से ही सही मायनों में हमारी वोकेबलरी रिच होती है और उसी से हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, तभी हम किसी चीज को सही मायने में समझ सकते हैं. अब मैं इसकी एक एग्जांपल देता हूँ. आप यहाँ पर एक सेंटेंस जरूर देख पा रहे होंगे. सेंटेंस है कि द डायलॉग इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ वार्म एंड बेंटरिंग टोन. हो सकता है कि आप जब ये सेंटेंस किसी कहानी में पढ़ रहे हैं तो आपको बेंटर का मतलब ना पता हो, और हर बार हर शब्द के लिए आप डिक्शनरी तो नहीं खोल सकते. उसका एक शॉर्टकट सोल्यूशन ये होता है कि आप कॉन्टेक्स्ट देखें कि बात किस बारे में हो रही है. द डायलॉग, कुछ बातें हो रही है, डायलॉग्स की बात हो रही है, मतलब इंसानों की बात हो रही है, जो बातचीत की बात हो रही है. एंड वो कैसी है, उसकी कुछ विशेषता. इट इज कैरेक्टराइज बाय अ वार्म एंड बेंटरिंग टोन. कि कुछ लोग बात करते हैं आपस में, उनकी टोन बहुत ही वार्म और बेंटरिंग होती है, थोड़ी बहुत नोक झोंक, नुकीली, समझ रहे हो, वो थोड़ी बहुत नोक झोंक जिन जिन लोगों के बीच में होती है. तो इट्स अ स्मॉल बेंटर, इसमें कोई बहुत ज्यादा क्रिटिकल यू कैन थॉट नहीं है, जस्ट अ स्वीट आर्ग्यूमेंट यू कैन से. तो अगर आप कॉन्टेक्स्ट देखेंगे तो आपको मतलब नहीं भी पता होगा तो आप कॉन्टेक्स्ट से मतलब निकाल सकते हैं. तो ये टेक्निक आपको जरूर आजमानी चाहिए, जो आपको फ्यूचर में हेल्प कर सकती है. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. Guys, this is a play, you can say, which I have taken from the previous exam question paper. ये मैं आपके सामने शेयर करूंगा, इसको पढ़ूंगा और साथ ही साथ बताने की कोशिश करूंगा कि ये कैसे हम कॉन्टेक्स्ट को समझते हैं. ठीक है. नानी और नाना, आप देख पा रहे हैं कि डायलॉग्स हैं, दो कैरेक्टर है हमारे पास, नानी और नाना.
जिनकी बात हम पढ़ेंगे और देखते हैं क्या ये आपस में इनकी बात हो रही है. This is not a sari, it is an oden. Nana, maybe it is. He puts it back. Nani, I never wore this sari. I thought when Dino gets married, our Bahu will wear this. Nana, she will wear it. She will wear it. Of course she will wear it. Dino and our Bahu, you're thinking about it. Nani, she will wear it. Let Dino get here. This time I will not let him return without getting married. We will definitely have a Bahu in this house now. She will wash my hair, comb my hair. I can't go on like this at this age, everything by myself. No, no, you can't manage by yourself. How can you? When there is Nana there? For what? Nana. For washing your hair, for combing it, of course. Nani, there you go. Just once, it was my mistake. I let you soak my hair and you will go on about it like a stuck record. Listening to you, my hair will start dropping. तो हम इस पूरे यहाँ तक का जो कन्वर्सेशन हमें क्या पता चला कि नानी और नाना दो कैरेक्टर हैं जो बहुत खासकर जो नानी है वो अपने मतलब दीनू कैरेक्टर है एक उनका बेटा है और उसकी होने वाली बहू के बारे में बात हो रही है कि क्या कब वो आएगी और ये साड़ी वो पहनेगी ठीक है और नाना कहते तुम्हें क्या जरूरत है पहने वो तो मैं तो हूं ही तुम्हारे पास हम है तो तुम्हें क्या जरूरत है उसकी ठीक है और वो उसे थोड़ा टीज भी कर रहा है she will wear it. She will wear it. Of course she will wear it. Dino and और बहू keep thinking about it. कि तुम ये खाली पुलाव बनाती रहो, ठीक है? सोचती रहो. Because he is not in a position to accept कि वो आएगा और इनकी मर्जी से शादी करेगा. दीनू, right? और ये कन्वर्सेशन ऐसे आगे बढ़ती है, ठीक है? और अगले फर्दर कन्वर्सेशन में देखते हैं और नानी का भी हम देखते हैं कि कैसे वो भी उसी अंदाज में वो बात कर रही है कहती है कि मेरी ही गलती है मैंने तुम एक बार क्या तुमसे अपने बाल क्या धुलवा दिए तुम तो मतलब पीछे ही पड़ गए हो एक रिकॉर्ड की तरह बस बजते रहते हो तुम्हारी बात सुनूंगी तो मेरे बाल ही झड़ जाए छोड़ो तुम नाना फर्दर क्या बोलते हैं कि they will drop let them drop I'm there to rub oil on your head. But listen, before you lose your hair, get your son fixed up. तो अगर वो झड़ भी जाएंगे तो झड़ने दो मैं रब कर दूंगा तुम्हारे सर को कोई दिक्कत नहीं है और ध्यान रहे उससे पहले कि तुम्हारे बाल झड़ जाए तो अपने बेटे को थोड़ा समझा दो नानी of course I'll get him fixed up as if I'll let him off I will also have to get a bigger flat then. और नानी थोड़ा फ्यूचरिस्टिक भी है कि हाँ मैं उसे समझा लूंगी राइट ऐसा थोड़ी कि मैं उसे जाने दूंगी और अब तो हमें बड़े फ्लैट के बारे में भी सोचना होगा नाना यस यस वी विल गेट एवरीथिंग बट लेट दीनो गेट हेयर फ्रॉम अमेरिका फर्स्ट पहले उसे आने तो दो उसके बाद ही तो तुम फ्लैट लोगी नानी ही विल कम आए बिना हाउ कैन ही मस्ट कम मतलब हाँ आना तो पड़ेगा ही वरना शादी कैसे करेगा वो Nani, Nana, but when? It's 8 years already, I don't know. कहता कि 8 साल तो हो गए अब मुझे नहीं पता वो आएगा भी कि नहीं Nani, of course he will come. Don't go on getting muddled about it. What else can he do? What does he have there? Who will look after him there? Who is there in America? So look at the uh, carefulness, love and affection that we can see through her questioning. क्या नहीं होगा क्यों नहीं आएगा और look at the belief of the motherly instinct और the affection कि आएगा वो क्यों नहीं आएगा आना होगा कौन है वहां उसकी देखभाल करने के लिए he will come right Nana, what is the point in your blabbering about this to me? You should ask him, ask Dino these questions. कहता भाई तुम मेरा सर क्यों खपा रही हो उससे पूछो ये सब सवाल राइट नानी चेंज ऑफ टोन ये जो ब्रैकेट में इंफॉर्मेशन होती है इसको ध्यान में रखना होता है क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि टोन और मूड समझना बहुत जरूरी होता है यहाँ पर थोड़ी सी नानी अपनी चेंज टोन करती है क्योंकि अभी तक तो वो क्या करे थी पहले संडे समझे ही विल कम बहुत आराम से वो माइल्डली बात करे कि हाँ आना होगा उसे क्यों नहीं आएगा देख रहे हो टोन अब देखना उसकी आवाज में शिफ्ट कैसे आता है
ऑल दिस इज बिकॉज ऑफ यू आफ्टर ऑल, तुम्हारी ही वजह से। थोड़ा सा उसका तीखापन उसकी आवाज में यहाँ पर हमें दिख रहा है। Nana, stop putting the blame on my head again and again. Nani, why not? You are the one who sent him off to America. Nana, what do you mean, sent him off? I didn't ask him to stay there forever, did I? Nani, I ask you, what was the need to send him in the first place? He became an engineer here. Who was dying to be educated there? तो अब उसकी आवाज थोड़ी सी भारी, थोड़ी सी क्रिटिकल, थोड़ी सी क्रिटिसाइजिंग टोन में अब वो हो रही कि तुम्हारी ही वजह से हुआ है ये सब। तुम ही ने उसको ये पट्टी पढ़ाई थी कि भाई साहब बाहर जाओ पढ़ने, ठीक है। चंगा वाला यहाँ इंजीनियर बन रखा था, तुमने ही उसे भेजा। इट इज योर फॉल्ट। ना ना, अरे व्हाट क्राइम डिड आई, क्या हो गया, मैंने ऐसा पाप क्या कर दिया? नानी, नाउ प्लीज चुप। ही हैड अ गुड जॉब देयर, नो, you got him to give it up and you sent him off so far। ये तुम्हारी वजह से ही सब कुछ हुआ, तुमने ही उसे इतनी दूर भेजा है। And why? So that when he got back from there and he lands a nice job, he will be well off and buying a car and get a bungalow and वो आगे चाह रहा है कि आगे कुछ बोले इससे पहले कि नानी ना नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट रखती है, कहता है क्यों, क्या हुआ? अब वो भी अपनी केयर दिखा रहा है। ही इज आल्सो ट्राइंग टू जस्टिफाई हिज एक्शंस की इसीलिए तो भेजा कि वो वापस आए, उसके पास अच्छी जॉब हो, अच्छा पैसे हो, गाड़ी बंगला को उसके पास हो सके, इसीलिए। नानी, इट्स योर मोर एंड मोर दैट डिड इट, सत्यानाश। Once this more and more demon raises its head, there is no end to its craving. There must be some dignity in things, no? Having happiness from less and not more. You are more and more. 8 years have passed already. He's still there making more and more money. No sign of him here. My God, this passage is so beautiful, so moralistic, so didactic in nature. We can also learn lessons from this argument of Nani. कह रही कि सत्यानाश हो गया है तुम्हारे इस मोर एंड मोर की वजह से कि और चाहिए और चाहिए, कितना चाहिए। इंसान को सीखना चाहिए कि वो आ, कम में भी खुश रह सके। तो बहुत इतना तो क्या क्या करें हम इस इतने पैसे का, उतना कमाएगा जब वो हमारे पास ही नहीं है, हम उसके साथ नहीं, तो ऐसी खुशी का हम क्या करेंगे? 8 साल हो गए हैं, अभी भी वो और पैसा बना रहा है और हम वापस आने का कोई नाम तक नहीं। तो इससे एक चीज जरूर हमें सीखनी, मैं थोड़ा सा इस पे ऐड ऑन करूंगा कि जिंदगी में सक्सेस के पीछे इतना भी नहीं भागना चाहिए कि उतने पीछे छूट जाए। ना ना, फर्दर अपना आर्ग्यूमेंट, गॉड नोज इफ ही हैज गॉट हिमसेल्फ अ वाइफ देयर, कहता मुझे क्या पता उन्होंने शादी कर ही ली वहां। नानी, now don't start mouthing such inauspicious thoughts. He is not someone to do something like that. Even if he does marry that there, it doesn't matter as long as our Bahu is one of us। Madhu enters wiping his hands on his pants। अब वो कह रही कि तुम ऐसी अपशगुन वाली बातें मत करो, राइट? वो ऐसा नहीं कर सकता, राइट? और ऐसे कर भी लेगा तो आई मीन इवन इफ ही डज मैरी देयर, इट डजंट मैटर, ठीक है, अगर हमारी बहू हमारे साथ रहती। देन एक और यहाँ पर मधु कोई है जो एंटर करते हैं यहाँ पे, वाइपिंग हिज हैंड्स ऑन हिज पैंट्स, possibly their servant। He goes out by the front door। Nani and Nana watch him go। Nana, this man has true bliss। Does his work fills his belly? The worry in his life not like us। नाना उसको देखता है बाहर जाते हुए, कहता है कि कितना खुश है, अपना काम करता है, पेट भरता है और कोई टेंशन ही नहीं उसे जिंदगी में। रीजन, क्योंकि इंसान जब बहुत ज्यादा चीजों के पीछे पड़ जाता है, तो मैं लास्ट सेंटेंस पढ़ने की कोशिश करता हूँ, बहुत ही छोटा दिख रहा है। देयर इज गोइंग टू बी अ बेबी इन द हाउस, हिज हाउस, कि हाँ उसके घर में बच्चा होने वाला है, तो इसलिए वो खुश है। अब कहीं ना कहीं, और ये देर ऑल्सो लॉन्गिंग फॉर सच हैपनिंग्स इन देयर लाइफ, राइट? नाउ आई विल बी शेयरिंग विद यू द क्वेश्चन।
an answer also that you can possibly see. You can take the screenshot, and that I'll give you the time to take the screenshot of the question and the answer. Why does Nani blame Nana for the son's absence? मुझे लगता है जब आप ये सवाल पढ़ेंगे तो you will not find yourself in a situation which is highly complex, rather so easy to answer these questions. कि नानी क्यों ब्लेम करती है नाना को कि उनका बेटा उनके पास नहीं? Of course, for thinking to have more and more, राइट? हालांकि उसको आप आर्ग्यूमेंट काउंटर भी दे सकते हो उसी का कि ऐसा भी नहीं था कि वो मोर मोर था, बट वो चाहता था कि हाँ वो भी एक वेल एस्टेब्लिश्ड और वेल सेटल्ड इंसान बने अपनी जिंदगी में, और इसीलिए उसने उसको बाहर भेजा था। बट यस, सवाल ये है कि नानी क्यों ब्लेम करती है, तो here you have the answer. Nani blames Nana for their son's Dino's prolonged absence because Nana had encouraged Dino uh, to pursue education and career opportunities in America. Uh, Nani feels that Nana's ambition for more wealth and a better life for Dino has led to their son's 8 year stay abroad. तो फर्दर इसका आंसर आप देख सकते हैं। तो कहने की बात ये है कि इट इज नॉट सो डिफिकल्ट वंस यू अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट। आप बहुत इजीली इन चीजों को जवाब दे सकते हैं, बट बी वेरी केयरफुल अबाउट यूजिंग द vocabulary while giving the answer. Your vocabulary should be very formal in tone, right? ऐसा ना हो कि आप बिल्कुल ही कॉमन कन्वर्सेशन के फ्रेजेस जो अक्सर हम भी देखते हैं कि बच्चे यूज करते हैं, उनसे थोड़ा बचिए, थोड़ा अवॉइड कीजिए और फॉर्मल एक्सप्रेशंस के साथ अपने आंसर्स को दीजिए। बाकी तो आपको कॉन्टेक्स्ट पता चल ही जाता है। और एक और सवाल है, इसका आंसर आपके दिमाग में खुद ही आ जाएगा। व्हाट काइंड ऑफ रिलेशनशिप डू नानी एंड नाना शेयर? उनका जो रिश्ता है वो कैसा है? उनकी बातचीत से हमें ये कॉन्टेक्स्ट हमें पता चल रहा था कि वो दूसरे के साथ कैसे रह रहे हैं। अब उसको सवाल में ही आंसर छुपा है। देखो नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है वही एक्चुअल में आंसर है कि इज देयर डायलॉग फुल ऑफ बिटरनेस और इज इट ए प्लेफुल एक्सचेंज? क्या उनको एक दूसरे से नफरत थी, और इट इज जस्ट अ प्लेफुल एक्सचेंज कि मतलब एक खेल खेल में ये थोड़ी बहुत नोक झोंक जो हम बात करते हैं, जो मैंने आपको शुरू में ही एक एग्जाम्पल के तौर पे भी एक सेंटेंस दिया था, वो इसी कॉन्टेक्स्ट में लिया गया था। तो आपको जवाब मिल गया कि ऐसा नहीं है कि वो एक दूसरे के लिए कोई नफरत रखते थे, ऐसा नहीं था, बिटरनेस नहीं थी, जस्ट अ प्लेफुल एक्सरसाइज एंड दे फेल्ट कि हाँ भाई, समटाइम्स लोग आपस में बातें करते हैं एक दूसरे को छोटा मोटा क्रिटिसाइज करते हैं, दैट्स इट्स लाइक जस्ट अ स्मॉल बैंडर, राइट? एंड दिस इज हाउ यू कैन रीड द आंसर। अब मैं आपको ये जब सवाल और जवाब, ताकि आप ये पढ़ना जरूर, आप क्वेश्चन भी और इसका आंसर भी, क्योंकि तभी आप समझ पाएंगे कि सवाल का जवाब। और हाँ, आप ऐड ऑन कर सकते हैं अपनी सवाल, जैसे ये आंसर्स हैं इनको पढ़ने के बाद अगर कुछ एक्सप्रेशंस आपको स्टोरी से कोट करने पड़े इन्वर्टेड कॉमास में, आप यूज कर सकते हैं जो आपको लगे, कोई भी फ्रेज, कोई भी एक्सप्रेशन, कोई डायलॉग, या अगर आप किसी पैसेज को ही रीड कर रहे हैं, ये तो एक ड्रामा के फॉर्म में था, तो आप कोट जरूर कर सकते हैं किसी की टोन को एक्सप्रेस करने के लिए। जैसे अगर आप हम बात करें कि दे हैव अ प्लेफुल एक्सचेंज, तो आप उनकी बात एक दो डायलॉग कोट कर सकते हैं अपने आंसर में, ऐसा कुछ नहीं, in order to justify, because it will enhance the validity of your argument. So I hope this uh, video can help you and will help you to go through the English language through literature exam. But yes, once again, let me reiterate this fact that I have shared with you the rules, techniques, and certain fundamental principles of understanding this subject or the comprehension in the examination. ये कोई शॉर्टकट्स नहीं है, ये चीजें आपको आगे भी याद रखनी है, फर्दर भी आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के कॉन्टेक्स्ट में ये चीजें आपको हेल्प करेंगी, और जो लोग फर्दर ELTL2 स्टडी करेंगे उनको भी ये चीज जरूर हेल्प करेगी। और मैं अभी आपको कुछ सेकेंड्स टाइम देता हूँ, आप ताकि ये दोनों जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स के साथ आप स्क्रीनशॉट ले सकें। आप प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये
क्वेश्चन और आंसर पढ़ने के बाद आपको पता चल ही जाएगा कि व्हाट इज द वे टू प्रोसीड, राइट? But yes, as I said, you can make certain additions because you do have your own mind, right? And using your own mind, your critical evaluation, your own critical potential, your capability to present answers with more articulation is up to you. You can, I have shared you something that can help you. Your job is to make it more pleasant, more impactful, more effective. So thank you guys. Thanks everyone for watching this video. And if you think it can help others, you can also share this with other students of ELTL too. Thank you.